Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Daniel. Hey, hey. आज का टॉपिक हमारा काफ़ी मज़ेदार है, थोड़ा सा हटके and it's a little bit more relaxed. Yeah. Technical बीच में चीज़ें कुछ आ जाती हैं लेकिन generally it's very relaxed, it's fun, and it's called as oxytocin, the love hormone. The love hormone. Yeah. अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था it is a Feel good hormone. feel good नहीं hormone. वो भी हो सकता है लेकिन But then no, I was proven wrong कि it is the course. love hormone. But I always thought it was the feel good hormone. But in any way, this is Yeah. this should be probably हम Valentine's Day पे करते लेकिन ख्याल नहीं आया उसका। ख्याल नहीं आया है ना Yeah. क्योंकि every day should be Valentine's Day है ना Oh, cringe yeah. indeed. Cringe तो क्या, but yeah, that's true वैसे. So we yeah. discussed the thyroid in our last episode, right? And insulin हमने discuss किया था अपनी blood sugar regulation Yes. के अंदर cortisol हमने discuss किया था अपनी stress वाली में episode भी में. anxiety में भी उसका जिक्र हुआ था. Right. So then we thought कि it's a good idea to talk about another hormone, which Yeah. is the love hormone. Yeah. Or the feel good hormone, oxytocin. Oxytocin. और oxytocin जो है वो आपका which is actually the opposite of cortisol. Yeah, right? because cortisol basically आपके stress को बढ़ाता है and oxytocin जो है वो आपको calm down करता है. And don't get me wrong, cortisol की अपनी जगह है और अगर उसके बारे में जो है वो आपको समझना है and you want to know about it, you have to go back to the episode on stress and Exactly. you will find all about it, what's important and कहाँ वो फिर ख़राब होने लगती है बात. Right. So coming back to oxytocin, it is basically a hormone that is again released by the hypothalamus that is present in your brain. Yep. तो वहाँ से release होता है and it is a hormone that allows love and bonding and closeness. Closeness. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये oxytocin के साथ जुड़ी हुई हैं and उससे and therefore of course it then affects your mood, your behavior और आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, आपको किस तरीके से बेसिकली आई फील पर्सनालिटी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेवलप हो जाती है, उस तरह की Absolutely. होता है, राइट? Yeah. तो ये तो हो गया सना love and bonding. But what else does oxytocin do? हाँ, तो नाम उसका लव हार्मोन जरूर है and we but the problem is हम भी असल में लव को एक ही एस्पेक्ट से सोचते हैं ना. Right. Yeah. कि ऑक्सीटोसिन बहुत सारी और चीज़ों के अंदर हेल्प आउट करता है. नंबर वन ऑफ कोर्स एज आई जस्ट मेंशन कि कोर्टिसोल का उल्टा काम करता है, सो दैट मींस इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस. तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगा, स्ट्रेस आपका ऑटोमेटिकली कम होगा. Yeah. It can help with reducing anxiety and depression. Yeah. Right. बल्कि low oxytocin levels have been researched to be associated with anxiety, depression, PTSD, and even autism. Yeah, so, this was something interesting. Yeah. Autism का सना ने जब we were researching this, तो मैंने यही बोला कि I mean I wouldn't have made that connection, but there is a link, right? There is a link. हाँ, और ये कभी-कभी बड़ी cool किस्म की बातें होती हैं जो आप पढ़ते हैं और कहते हैं really? तो एक हार्मोन जो है वो बैठा हुआ ये काम भी कर रहा है. Yeah. उसके मतलब लिंक्ड है. अब exactly उसका ये मतलब नहीं कि उसी वजह से डायरेक्टली वो हो रहा है, बट मजीद रिसर्च होती जा रही है और वो लिंक्स सामने आते जा रहे हैं कि ये चीजें हैं. It can also help overcome social phobia. Yeah. Right. Yeah. जो लोगों को कभी सोशली होता है, जब लोगों से मिलना होता है, socially awkward हो रहे हैं, या extreme shyness. Exactly. Or maybe when you're up for a presentation or those kind of things. And then उसके बाद, yeah, of course, it helps establish intimacy. Absolutely. That is why it's called the love hormone, right? Helps it establish intimacy. लेकिन ये एक मजे की साइकिल है कि जहाँ ऑक्सीटोसिन जो है वो intimacy establish करता है, दूसरी तरफ intimacy can boost oxytocin. So it's a circular thing, Yeah, right? yeah, So exactly. one boosts the other and the other boosts
the one Yeah. before. खुद ही confuse हो गए क्या कहना था. Right. Yeah. So it can also make you feel more confident, be more positive, have a more optimistic approach. And when we talk about being confident, इसमें बहुत सारे aspects आते हैं. Yeah. You know, it's not just के maybe one day you feel confident because the way you look, the way you feel, you know, all of this is encompassing that. Yeah. So basically, oxytocin का surge जब होगा, आपको अपना आप present करना, अपने आप within your own skin. You feel comfortable. Comfortable in your own skin. वो वाली बात होगी. Yeah. Right? अच्छा, एक और बड़े interesting चीज़ है जो maybe women might know या maybe they don't know. लेकिन आपका जो oxytocin होता है, it helps you get through labor. And it stimulates your uterine contractions और आपके labor को आसान करता है. इसलिए having Very interesting, that, and having that environment जिसके अंदर, you know, the women going through labor has that environment where she feels loved, where she feels safe, where she feels comfortable. और इस किस्म की सारी चीजें although खासी stressful environment होती है उस वक्त when they're going through that, but it's all about how we, maybe the men around the women who are going through labor can create that environment exactly to have the surge of oxytocin. Right? So I think it's your obviously आपके husband ही वहाँ होते हैं और कुछ जगहों पे नहीं भी होता. I think बल्कि बहुत सारे hospitals में हमारे यहाँ नहीं होता है. Husbands नहीं होते. अब होते हैं. एक ज़माने में पहले शायद नहीं होते थे. अब तो होते हैं. अब होते हैं. So basically आपके a lot of friends who've been in the labor room, you know, with their partners. तो unless के वो side में बेहोश हो जाए. Yeah. वो भी actually पिछले दिनों मैं वो देख रहा था YouTube पे videos. एक तो literally ना बेहोश हो गया और वो सारी nurses फैन कर रही थी. उससे तो it was really वो काफी funny है. बहुत Yeah. सारे हम sitcoms और उनमें भी देखते हैं कि वो हमेशा वो गिर जाते हैं और जो the one going through labor वो साइड में जो वाइफ है she's like. In fact, Sana had a C-section, तो मुझे जब लेके जा रहे थे, सना को तो वो प्रेप करके लेके जा रहे थे, but मुझे उन्होंने स्क्रब्स दिए थे. तो I got so excited जब मैंने स्क्रब्स पहने और वो पहना तो मैंने सेल्फी ली थी चेंजिंग रूम के अंदर. And all this while मुझे this was a C-section after 24 hours of labor. Yeah. So it had to happen. तो फिर जब मैं finally when I got in, I saw कि एक इंसान scrubs पहन के कुछ इतना excited है. Yeah. In fact, that was not the first time I wore scrubs, because I had a friend who was in AKU जब मैं कराची में होता था. तो he gave me the scrubs, तो मैं as night suit पहनता था. Another thing I wanted to mention कि oxytocin जो है बहुत ही anti-inflammatory है. So obviously then it helps you with healing your wounds. मैंने तो इधर पहले बोला था wounding your heels. I did that. I don't know how you would wound your heels, but anyway, maybe there's a way. I don't know. There's a way, लेकिन आप you can heal your wounds. Oh my God. अब वो असल में रात हो गई है. आज हम ना इस वक्त कर रहे हैं और इस वक्त दिमाग का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. हैरान हूँ कैसे. इनफैक्ट मुझे सुबह फ्लाइट लेनी है अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए हम अभी कर रहे हैं. वरना we don't. इस वक्त तो हम होते हैं बिस्तर में. मिशाल सो चुकी है और जब मिशाल सो जाती है उसके बाद हम भी सो जाते हैं. वो हमारा तो anyway, anti-inflammatory properties जो हैं wounds को heal करने में और pain relief के लिए. Right. So also that means it's great to help people who are going through something, to surround them and try to boost their oxytocin, right? आप उनके इर्द गिर्द उनको you know अच्छा माहौल देंगे, प्यार मोहब्बत का माहौल देंगे, and comfortable होगा and calm होगा, relaxed होगा. So जो healing है और recovery है और relief है pain से, that is going to be much faster and probably much easier. Yeah. Right. Yeah. लेकिन सना जब ऑक्सीटोसिन chronically high रहने लगे, chronically low रहने लगे और cortisol chronically high रहने लगे, so that's a condition जो कि we should have it checked, right? And that's something
वी नो कि अगर क्रॉनिकली आपका लो है ऑक्सीटोसिन और उसके बरक्स आपका कोर्टिसोल इज क्रॉनिकली हाई, सो this is basically eventually this is a recipe for disaster, और right? उसमें symptoms क्या हो सकते उसमें फिर हैं? then that's how you're going to, if you're constantly feeling that feeling of misery, not because of a certain event or something, in general, feeling miserable, feeling frustrated, feeling Fatigued. irritable, feeling fatigued, yes, आपसे मूड से ये सब चीज़ें constantly और हर वक्त रह रही हूँ आपको, तो then maybe it is because this is happening. आपका आपके आपके शायद circumstances ऐसे हैं, आपकी कुछ Yeah. life ऐसी है, आपके habits ऐसी हो गई हैं, या कुछ भी ऐसे चीज़ चल रही है जिसकी वजह से this is chronically happening, Yeah. and that is why you're feeling all And of that this. needs to be checked because that could lead to depression Yeah, or yeah. anxiety and Yeah. those kind of things. So again, anything chronic leads to something bad. needs to be checked and done something about it, क्योंकि अगेन कोई चीज़ इतनी लंबी खिंच जाए फिर वो कोई गड़बड़ी बन जाती है आगे जाके. Definitely. ये लेकिन ऑब्वियसली ज़रूर है, कोई ऐसा पीरियड आता है क्योंकि लाइफ इज़ लाइफ. Yeah. और आजकल हमारे यहाँ वो पीरियड आया हुआ है, life is life. Exactly, हाँ. But we're dealing with it. Yeah. So वो सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर वो पीरियड हो during that time, ज़ाहिर है, it could be anything. It could be, you know, grieving someone. It could be because of you know, a health condition of your loved one. जैसे अभी हमारे यहाँ आजकल फैमिली में we're dealing with that. It could be a financial setback. कोई भी Right. किस्म की चीज़ हो सकती है. So trying to that, if that happens, तो वो तो एक अलग बात है, because that is, you know, for that time period, उस वक्त के लिए है, और उस वक्त पे it's important to give yourself that time. Yeah. And space And to be okay हाँ, with that emotion, right? I mean, Exactly. I'm pretty sure at that time the brain will Yeah. not be producing oxytocin, वो right? आपका नहीं है, and it's okay. And it's okay. Because आपको ये body में you should give yourself that chance and that space and that Yeah. time to either grieve or to handle that situation, Yeah. however it is. लेकिन we are talking about every day, जिसके अंदर there's no one specific big thing, but वो every day का chronic जो है वो stress आपका बढ़ता चला जाए. So that's तो not फिर good. that's something. And that's to, what we discussed that in our stress episode, right? Exactly. जो distress हो जाता है. जो distress होता है, which is, yeah, Right. that's true. So Sana, how can we naturally increase our production of oxytocin? Oxytocin, yeah. So अब obviously सबसे पहले तो क्योंकि इस कदर लव हार्मोन की बात हो रही है, तो Maybe ज़ीशान या hearts बना देना हर जगह. ये वो एक फिल्टर है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें ना यूं करो ना, you do this, तो वो मुंह से hearts निकलते हैं. I don't know ज़ीशान if you can do that. No, don't do that. मैं तो बता रही हूँ, मिसाल But maybe hearts in that. Yeah. Anyway, so obviously जो पहला है वो है intimacy, and ढूंढने कहीं आ ही जाएगी, कहीं से मिल ही जाएगी. अगर नहीं है लाइफ में हाँ, तो ढूंढने. हाँ, इसको इतना डिटेल में हम नहीं डिस्कस करें. अगर ये एक वुमेन सेशन होता तो क्यों? काफी और डिटेल में मर्दों में नहीं हो सकता ये? वो आपस में खुद करें, आप जाएं करें लोगों को. अलग बात यार. क्योंकि अगर फर्क ज्यादा हो गया कर ना? दिया ना, फर्क हो गया. क्यों फर्क हो गया भाई? आप अपना करो, मैं अपना करूं, अपना अपना रास्ता नापो. तो ये एपिसोड अलग होनी चाहिए थी, है ना? एक डिवाइड के साथ, और एक और पर्दा. नहीं, और एक बड़ा सा डिस्क्लेमर अपने उस पे आए. एनीवे, सो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज हग्स, मोर हग्स. क्या था, एक सेकंड, मैंने लिखा है मोर हग्स लेस थग्स. I swear to God, I don't know what that means, लेकिन मुझे खुद okay. नहीं पता. तो I was just trying to Google कि कोई तो ऐसी राइम करती हुई कोई फन सी कैची सी चीज हो, तो वो ये निकले ना. अपेरेंटली लोग टिकटॉक पे यूज करते हैं, मुझे समझ भी नहीं आया. I tried to make sense क्या of था it. again? Hugs more, for more hugs less thugs. पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन मकसद ये है कुछ और होता है. कि हाँ, फिर मुझे भी नहीं समझ आया. अगर इसके पीछे आपको मीनिंग पता है, या कोई ये जेन जी टाइप स्लैंग है, तो फिर कोई समझा दे. Well, I don't know अगर जेन जी कोई देखता है हमारी तो वो शायद समझा दे, या वो भी कहेंगे कि भाई ये कुछ देखते हैं. ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता कहाँ से ले आए. एनीवे, सो मोर हग्स. Yes. हग्स जो हैं इन जनरल, दे हेल्प यू
feel more calm. तो आपका ऑक्सीटोसिन का सर्ज होता है when you feel that, especially अगर Yeah. आप स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं या एंग्शियस हुए हुए हैं या In आपको अच्छा fact, फील नहीं कर रहे हैं. it's so मुझे अभी ख्याल आया बिल्कुल इस हाँ. बात का, when you're having an anxiety attack या हाँ, panic हाँ. attack, hugging also very much helps because आप constrict हो जाते हैं and सना ने जैसे mention किया कि oxytocin का release surge होता है, होता है, तो yeah. there's a chance कि the Okay. anxiety attack जो है या उसका passes and हाँ, it या reduces. इंटेंसिटी कम हो जाए. Mhm. Yeah. Yeah, So I've read about that. हाँ, तो वो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. So इसलिए more hugs Less hugs. with your आपके फैमिली में अपने बच्चों के साथ, स्पाउस हो, आपके बच्चों के फ्रेंड्स साथ हो. very important. And with everyone जो भी आपका close relation है, तो उसके अंदर go ahead, and if you feel sad or if you see, अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला is sad, तो go ahead and just do that. It makes the person immediately, that person will feel lighter. They're going to feel relaxed. एकदम से body relax हो जाती है. जो tense होती है ना, shoulders यूं हुए हुए और jaw clench कर रहा है और परेशानी है, वो एकदम से relax हो जाती है वो चीज़. But randomly लोगों को जाके hug ना करने लगे, क्योंकि फिर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन के चक्रों में ना हो रही होगी पिटाइयाँ. और आजकल के ज़माने में तो you have to be very careful, right? बगैर जान पहचान के इधर उधर ऐरे गैरे को hug करना शुरू कर दिया. यहाँ पहुंचे जप्पियाँ शप्पियाँ. अरे हाँ, वो जो था ना एक वो सेंटा बेंटा था ना वो. नहीं, मैं तो वो बता रही हूँ, वो फिरदौस आशिक अवान ने नहीं बोला था जब कोविड के ज़माने नो में जप्पियाँ शप्पियाँ, नो झपियाँ, नो पपियाँ. हाँ, चले वो आपके ऊपर है. That's up to you. Anyway, and I want you to specifically say, दानियाल ने भी बीच में भी ये एकदम बोला कि बच्चों को especially, because your kids, especially younger kids, जो छोटे बच्चे होते हैं, even teenagers लगते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत most likely यूं करेंगे वो, लेकिन आप उनसे कहें कोई बात नहीं, लेकिन not just anyone, you have to be careful, क्योंकि no means no is also important. ये भी एक बात है भाई. अपने बच्चों को करना लेकिन बहुत अपने important बच्चों है. को आप करें, let them feel safe, even if you do डांट, जैसे मिसाल कहती है you did डांट, तो अगर डांट भी की है, उसके बाद इतनी ईगो बड़ी ना रखें कि अब ये मुझे जब तक सॉरी नहीं करेगा आके, तो मैं देखती हूँ क्या होता है, या मैं देखता हूँ. डोंट डू दैट. I remember मेरी अम्मी बहुत वो करती थी मामा इस मामले में, और मेरे दादा at the time जब वो जिंदा थे, पापा हम कहते थे उन्हें, तो पापा कहते थे भी प्यार कर ले इसे, वो मामा कहती थी नहीं अभी नहीं करूँगी मैं. वैसे होता है. वैसे एक दिन वो ये हुआ है कुछ months पहले ना, I was so mad, I think I was so stressed, and then unfortunately then बाद में इतना regret होता है, मैंने मिसाल को भी फिर डांटा, उसकी कोई बात, मुझे इतना गुस्सा आया, and फिर उसके बाद then she cried, वो बहुत वो upset हुई. तो फिर उस वक्त उल्टा हुआ ना, अभी आप अपनी मामा का बता रहे हैं, तो अब वो रोल रिवर्स हो गए. Now she is the grandparent and she was there. वो थोड़ी देर में कहती है तुम अगर बेटा प्यार कर लो उसे रिक्वेस्ट, अगर बेटा मैंने, मामा was very strict like that. उस दिन मुझे, वैसे मैं हमारी मदर्स की तरह, my mom was also very strict. हमारी सारी चाचियाँ, वो कोई जो देख भी रहे होंगे, सबको पता है they were all very strict. हम किड बच्चों के साथ, I think मेरी फूफियों में से भी नहीं, कुछ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रिक्ट है. हाँ, मेरे फूफियों में भी इतना नहीं था, बट ऑल माय चाचीज बेसिकली सारी मेरी ताई हैं, वो हमारे ये सारी जो वो थे ना, दे वर ऑल वेरी स्ट्रिक्ट. सो एनीवे, आई एम जस्ट सेइंग कि हम तो फिर भी, मुझे जल्दी में हो जाती हूँ. लाइक अगर मैंने डांट दिया, और ऐसी डांट तो बहुत रेयरली होती है, अगर मैंने डांटा है तो फिर उसके बाद में वेरी क्विकली आई विल से सॉरी, आई विल हग हर, आई विल से इट्स ओके, मेरी गलती है तो मैं सॉरी भी करूँगी, और इस तरह की चीज़ें. तो खैर, सॉरी करना कोई छोटा नहीं होता, छोटा नहीं हो जाता है. एग्जैक्टली. वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम गोइंग टू मेंशन, बाकी चीज़ें तो सुनी होंगी, वो इट्स बेसिकली अ रिमाइंडर, ये बाकी कैसे करें बच्चों के साथ ये वो, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हगिंग. हाउ डू यू डू दैट?
ऐसी शक्ल ना बनाओ, बिल्कुल सही बात है. I mean, This मैंने this लिखा हुआ है कि मैं I ये know, सवाल I know, पूछूंगा I know, सना से कि I know. how do you do that? Maybe It's you can show us. yeah, it's not as if कि आप पब्लिक में बाहर निकल जाएं और रोडों पे जाके अपने आप को यूं करना स्टार्ट कर दें. ऐसा भी नहीं है. आई मीन अगर इतना कॉन्फिडेंस है और दिल चाह रहा है तो श्योर. लेकिन इट्स मोर अबाउट calming yourself, because every time you have maybe something extreme like a panic attack, or something not as extreme, you're just feeling extremely sad, or it's just something, कुछ भी हो सकता है. You don't always have people around you to calm you down. Sure. So this is a technique, and you have to force yourself to do this. So like you hug others, you can just do that and wrap your arms around yourself and just sit there for a while. Yeah. You बैठ जाते. हम दोनों कितने हम Ready. Chacha, why don't you guys try and let us know in the comments, Yeah. how do you feel when you hug yourself? Yeah, नहीं, और तब ट्राई करेगा जब एक्चुअली you feel the need, ताकि then you can also feel the effect of it, और ऐसे बैठे हंसते ना रहे क्या कर रहे हैं नहीं तो दिमाग मे में. बी हंसने से भी वो सेरोटोनिन के मे बी सेरोटोनिन भी बढ़ता है, बट ऑक्सीटोसिन बढ़ सकता है. हंसने से तो होगा, क्योंकि अगर इससे हंसी आ जाए और the end goal is कि कि बस ऑक्सीटोसिन वो बढ़े ना, बढ़ाना है तो किसी तरह, बस जैसे ठीक भी है. हो. चलो खैर. Anyway, it moving may seem on. silly, but you can give that a try. Let's see. Yeah. Anyway, उसके बाद हम आते हैं सोशलाइजिंग के ऊपर. ओह, सोशलाइजिंग, Yeah. जो कि कभी कभार बड़ा आसान लगता है करना, लेकिन Yeah. हर किसी से नहीं हो पाता. और कभी जो लोग करते Yeah. भी हैं तो वो maybe they're not in the right company. Yeah, so सोशलाइजिंग की बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि either it can be really beneficial or really detrimental. Yeah, So, depends on who you're socializing exactly. with, So right? if you're the right kind of people, they are really going to uplift you. Right. And the wrong kind of people, they are going to drain you. And That'd drain be a very you so toxic bad environment for yeah. you. तो Exactly. अगर हम इस सिर्फ अपने साउथ एशियन उससे देखें तो हमारे पास जो सोशलाइजिंग का, क्योंकि आप कितनी जर्नल्स उठा लें, साइंटिफिक जर्नल्स, ये वो जो कुछ भी है, ऑक्सीटोसिन के बारे में इधर उधर पढ़ेंगे, आइसोलेशन पे बातें आएंगी, डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर बहुत सोशलाइजिंग का और कम्युनिटी का और इन सब चीज़ों का बहुत जिक्र होता है. क्योंकि अगर हम कंपेयर करें वेस्ट के साथ तो ऑब्वियसली हमारा और इसमें ना बहुत बड़ा फ़र्क है, बिकॉज वी हैव कम्युनिटीज़, वी हैव बिग ख़ानदान, हमारे पास रिश्तेदार इर्द गिर्द हैं, हमारे फ्रेंड्स इर्द गिर्द होते हैं, और हमारा जो कल्चर है वो इस किस्म का है, मिलना and people come together in times of Exactly. need. Yeah, जो कि थोड़ा सा कभी फॉरेन हो जाता है when ये western cultures or western societies में, right? I'm not saying it's a generic thing, but and doesn't apply to everyone. कोई ऐसा blanket but अभी recently मुझे ऑफिस में किसी ने यही बताया, and they were discussing the same कि तुम्हारे culture के अंदर it is so nice that a family comes together, and friends come together and everyone shows up, and it's and she was Dutch actually, and she said कि it doesn't work that way in my family. So yeah. तो वो जो कहते हैं ना, खुशी के टाइम पे भी गम के टाइम पे भी हम लोग साथ आते हैं. आई थिंक ये बड़ा फ्लेक्स है एक साउथ एशियन कम्युनिटी का, या और भी एशियन कम्युनिटीज. I think so. It's not just South Asian. And और भी जगह होगा. I'm not saying. Italians are really good at that as well. Exactly. You know, family values. बहुत ज़्यादा होता है. बट हम अभी अपने उसकी ज़्यादा बात करते हैं तो उसमें हमारा ये बहुत है कि हम इस बात पे बड़ा प्राउड फील करते हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग द वे वी ऑल कम टुगेदर. बल्कि एक इंटरेस्टिंग मैंने एक चीज़ जो है वो मैंने पढ़ी थी, मैंने लिखी भी है यहाँ पे, कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिच एनवायरनमेंट होता है ना, वो होती है एक वेडिंग. और हमारे तो सिर्फ एक दिन नहीं होता है ना, हमारे तो अरसे लंबी मल्टीपल डेज चलते हैं. मल्टीपल डेज, और हमारी कोई 100 लोगों की तो होती नहीं है. 100 लोग तो हमारे खानदानी हो जाते हैं. मैं तो माशाल्लाह ददियाल में आई थिंक वो तो हम वैसे ही हो जाते थे सारे लोग. मजा आता है इनके. सो वो
obviously we have so many people, तो वो हमारी weddings इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, unless कि उसके अंदर मुंह बने हुए हों, लड़ाइयाँ हो रही हों, तो या वहाँ दूल्हे वाले, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना हाँ जरा मुश्किल है. है, दूल्हे वाले जो हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हों कि वो क्या चीज़ है, तो ऐसे में फिर गड़बड़ हो सकती है. बट इन जनरल दिस इज़ द जनरल आइडिया के ऑक्सीटोसिन रिच एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा जो है, दैट्स अ वेडिंग with the bride having the most the highest levels, and the bride's mother a very close how do you call it, as in number 2 for example, अगर वो हो सकती है. It'd be nice to see अगर कोई radar हो ना, wedding में जाके you can see कि भाई तुम्हारा कैसे oxytocin हो levels रहा है. क्या हैं. I think it also depends on your society, your culture, your things. Absolutely. क्योंकि ये चीज़ें जो पढ़ी हैं, ये एक वेस्टर्न सोसाइटी की एक वेस्टर्न ऑथर है जिसकी मैंने पढ़ी है, राइट. अब ब्राइड्स मॉम, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन वो किस उसमें कितने स्ट्रेस में फिर रही हैं. आई रियली डोंट नो उनके कौन से ऑक्सीटोसिन लेवल्स होंगे. भाई ब्राइड और हाँ. ग्रूम की मदर्स लिफाफों का ख्याल रखती हैं. वो नहीं रखती, उनकी कोई बुजुर्ग रखती है. मेरी बड़ी फुप्पो थी, उनका ऑक्सीटोसिन जरा कम होगा क्योंकि उनको स्ट्रेस होगा कि लिफाफे नहीं, लेकिन जिनको वो देते हैं वो आराम से सोफे पे होते हैं, उनको Yeah, बहुत but, ज्यादा इधर उधर नहीं फिरना होता. जरूर, लेकिन Yeah. they have a big They have a big responsibility, responsibility, right? क्योंकि इस कदर लिफाफा आ रहा होता है pouring in from all directions. Yeah, so it could be हाँ. either way, you know, It can be. oxytocin या cortisol. So अब हम वो 6-7 नॉनसेंस है. Gen Z की बातें हो रही थी ना. Gen अभी Z. recently मैं टीम्स की कॉन्वर्सेशन थी और Don't कभी tell आप me को ये करने लग गया. नहीं वो गिफ्ट्स भेज सकते हैं, गिफ्ट्स कहते हैं या GIFs गिफ्ट्स होते हैं, कहते हैं, आई डोंट नो, बट उसमें मैंने कोई चूज किया तो उसमें ये था एक कार्टून कैरेक्टर 6-7 कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही एनीवे इररेलेवेंट. अगर आपको पता है 6, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई डोंट नो अगर आपको पता है 6-7 क्या है तो प्लीज हमें एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज़ नोबडी हैज बीन एबल टू एक्सप्लेन इट टू मी एट लीस्ट. के एक्चुअली मिशाल ने भी मुझे उस दिन पूछा था, डू यू नो 6-7? या but it's just 6-7. I There's know, nothing. no. She just wanted to know if I knew. Yeah, but so I said I know Mishal, and I said तुम लोग क्या बोलते हो? C-set. कहते no. 6-7 ही बोलते हैं, because वही पॉपुलर हुआ है ना. तो उन्होंने लैंग्वेज में बदले नहीं है कि ये लोग फ्रेंच में नहीं बदलते हैं. ज्यादातर सारे जो स्लैंग्स और सब चीजें वो फिर इंग्लिश में छोड़ देते हैं. या Right. Anyway, so coming back, हम ये बातें कर रहे थे इसके ऊपर, but we just wanted to hit on this other aspect of this the other side of the coin, other side of the coin, of a big social socializing का scene होता है, and that can really help you with all the oxytocin surges and the boost. The other side of the coin is that we don't like to talk about really in our communities और हमारे region में समझो, people feeling lonely even in that big crowd, even with so many people around. You're not alone, but you feel lonely. Exactly. So you are surrounded by people, you're surrounded by relatives, you're surrounded by friends, you're surrounded by a big community, yet you feel lonely. Correct. And there are actually multiple reasons, and that we don't want to talk about. Generally we don't like to, क्योंकि हम आम तौर से भी हमें बहुत आदत है हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े मसलों को to just brush them. हाँ, और वो ना नजर आएंगे ना उनके ऊपर बात की जाएगी, और because we have to keep up appearances. हमारे साथ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है. It's a big problem. तो उसमें से I think ये जो feeling lonely वाली है, जैसे I feel जैसे for men, men are unable to share their feelings. You know, वो they're unable to even share it with their spouse. You know, at least हमारी community के जो मर्द हैं, I'm not saying all of them, but majority of them, it's very difficult. You know, I mean, they're allowed to be a man, but they're not allowed to be a sensitive man. ना वो उनका रोना हो सकता है, और ये जो स्पाउस के साथ शेयर करने में ये भी बड़ा है कि आप उनको किया ही नहीं है, and I'll be honest, and the wives, then they have no idea what's going on. उनको फिर नहीं पता चल रहा होता कि भाई तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है. नहीं, और क्या स्ट्रेसेस हैं, लाइफ के हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, there could be many things, it could be family stresses, could be many things, but
a lot of times, and I'm guilty of that, I always say कि जी I leave the work at work and then I never bring it home, and maybe I'm doing something in thinking that this is beneficial for the family, लेकिन maybe subconsciously कहीं और से वो निकल आएगी चीज अगर कोई stress होगा, Yeah. तो maybe it's best to be open about it. Yeah, because then you are probably not you, so मेरा मतलब है men in general, it's like I have to deal with this because I'm a man and I will deal with all of this, and मैं अगर या तो दो बातें, या तो फिर you think कि वो क्या ही समझेगी मेरी बीवी, है ना, एक तो ये बात हो सकती है अगर आप उस किस्म का सोच रखते हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं why burden her, उस पर क्यों डालूं, ये बातें मेरी हैं. Why नहीं, I'm burden not her? talking about you. पर्सनल लाओ, पर्सनल Oh my लाओ. God. हाँ, no. जब एकदम मैंने कह दिया कि नहीं भाई दो बातें हो सकती हैं. So but you have to remember कि your wives are they are Wives उनके meaning अंदर hopefully एक ही होगी आपके पास. नहीं, सब मेन को कह रही हूँ. फौरन आ गए, एक ही होगी. Your wives are very, women in general are very strong. So and similarly goes for women. And वो तो हम we talk about that a lot because हमने तो चार्ज लिया हुआ है ना मिलेनियल्स ने, मिलेनियल औरतों ने, कि हमें बातें करनी है, हमें बात सबको बतानी है. So at least we've made awareness. बट वो बात अभी भी वही है बहुत जगह कि women feel lonely. वो इतने भरे घर में भी होती हैं but they are burdened with so much from morning to night, और especially if they live in families या बड़ी बड़ी families हैं, और उनके पास every day के जो chores हैं, cooking, cleaning, laundry, ये करना, वो करना, मेहमानदारी, और तो उन चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा हो जाती हैं, they are so like sort of forced into that whole thing कि उनके पास अपना टाइम बचता ही नहीं है. So how are they going to take that time for themselves, to do something for themselves, to feel relaxed, to feel calm, जिसके अंदर वो लाइफ को एंजॉय कर सकें. एंड द इंटायर वो होता है कि अभी तो ये है नहीं, अब जब हमारी रिटायरमेंट की एज आएगी तभी हम एंजॉय करेंगे, या बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, या बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम करेंगे. तो इतना इंतजार क्यों क्या करवाना जरूरत है, है? मुझे समझ में नहीं आता ये तो क्या है. छोड़ें बेलन और छोड़ें रोटियां, नहीं और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएं किसी तरीके से. फलाह, मैं तो अपने एडिटर को बोलने वाली इस बात को कट कर दो. हरगिज नहीं, that was gold. That was not gold. Gold. बेलन छोड़, ये इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप घर के काम नहीं करेंगे क्योंकि उससे आप छोटे पड़ते हैं, बट या आप वो उससे हैं. डिफाइन भी नहीं होते हैं. उससे आप डिफाइन नहीं होते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी समथिंग कि वो आपकी पूरी, इट शुड नॉट टेक ओवर योर एंटायर लाइफ. दैट इज द मेन थिंग. बस ये बात है मेनली. हाँ, मैं और क्या बोलूँ इससे, क्योंकि हम ये इतने ही करते हैं, उसके बाद ना एक इमोशंस जो है ना वो ऊपर तक वो इसलिए आ जाते हैं बिकॉज़ यू रियली वांट टू. ऑक्सीटोसिन की जगह कोर्टिसोल आने हाँ, वो लगता मैं है. उल्टा हो जाएगा. एपिसोड किसी कर रही हूँ, अपना कुछ और चल रहा है सिलसिला. Let's Yeah? bring it back, eh? Yeah, so we just really wanted to emphasize on this socializing bit that it is basically there are two sides to this one coin. Right. और उसमें जहाँ बहुत कुछ अच्छा भी है, वहाँ there are things to ponder over. There are things to really reflect on. Yes, think about them. Yeah. And keep the awareness. Keep the awareness. The other thing what was interesting, Sana, was that warm temperatures, है ना? Yeah. Warm temperatures increase the release of oxytocin. Yeah. But इसका ये मतलब नहीं है कि जब कराची में लाइट चली जाए और गर्मी लगे, उससे मुझे तो कभी ऑक्सीटोसिन हाई नहीं हुआ मेरा. No, but you have to remember कि हम उस वक्त की I think बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिश होती हैं या रिसर्च होती हैं, हो सकता है कि वो कोल्डर इलाकों के लोग हैं जिन्होंने की हैं. So they're basically focusing on that. And I think जब लाइट जाती है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग होती है rather than कि जी मेरी टेम्परेचर फीलिंग क्या है. या उस वक्त 40 डिग्री के अंदर, और जब वो बुरा हाल हो रहा होता है और लोड शेडिंग हो रही होती है और पसीने बह रहे होते हैं, एंड तो उस वक्त आप जो हैं आप कूल काम एंड कलेक्टेड नहीं होते. बिल्कुल भी उस वक्त आपके एसी को
गालियां दे रहे होते हैं और आप कि बस ये एक सीको अलग ही या वापडा को या हाँ जहाँ जहाँ भी से आप आप रहते रहते हैं हैं, या यस तो वो आपका अलग है बट इन जनरल बात है अगर बहुत कोल्डर इन्वायरमेंट के अंदर हैं एंड इन ऑर्डर टू फील बेटर यू कैन डू थिंग्स लाइक सोना या हॉट योगा या इवन या ये सब भी छोड़ें बहुत फैंसी बातें लग रही हैं किसी किस्म की भी एक्सरसाइज सो यस एक्सरसाइज इन जनरल एक्सरसाइज इतनी चीज़ों का हल है ना so शायद generic but हाँ it's बट so सो important इम्पोर्टेंट yeah इसकी बात करो तो एक्सरसाइज yeah फलाने की बात और करो तो एक्सरसाइज further down our list एक और चीज आएगी हाँ वो भी आप कहेंगे कि तो हर चीज का मर्ज की दवा एक ही है क्या है स्लीप हाँ वो तो बट खैर था उसके बारे में हम या बात करेंगे या एक और चीज सना तुमने लिखी थी which is interesting जो कि हमने थोड़ा सा उस पर टच किया है या invest in good friends yeah absolutely yeah so good friendships you really need to invest into especially as adults Hmm. and good and हाँ quality friendship quality friendship of yeah course they can be friends where you just hang out with them you have a good time you move on but आप इतने closely knit नहीं होते वो भी आपका circle हो सकता है but then you और also वैसे need to वो भी friends होते वो भी हैं फ्रेंड्स होते हैं वो मतलब वो नहीं होता बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव लाइक गुड क्लोज फ्रेंड्स जिनको यू नो आप कोई भी बात कह सकते हैं दिल की विदाउट भड़ास भी हेजिटेशन निकाल सकते या हैं हम लोग बड़े दिनों बाद मिले एवरीवन वाज जस्ट सो बिजी इन देयर ओन थिंग्स और एकदम ही हो जाता है ये कि ना आप एकदम बहुत बड़ा मिल रहे होते हैं और एकदम से और फिर टाइम एकदम से गुजर ऐसी जाता है चीज़ों में आप फंस जाते हैं तो नहीं होता सो वी मेट एंड देन हमें एकदम ही ख्याल आया कि वाह कितना अमेजिंग फीलिंग होती है कि एज अडल्ट हमने अपना जो क्लोज वो बनाया है एंड एक मेरी फ्रेंड हमारी फ्रेंड है वो कहती है कि यार इतनी बेस्ट बात है कि हमें एक दफ़ा भी नहीं बोलना पड़ता कि प्लीज़ ये बात ना किसी को नहीं बताना है क्योंकि हमारे मुंह पे आता ही नहीं बिकॉज हमें इतना श्योरिटी है कि जो भी मैं अपने बात कर रही हूँ दिस इज़ गोइंग टू स्टे बिटवीन द फोर ऑफ अस And we also discussed कि adult friendships में there are things, especially if you have moved from your countries and you're an expat या आप कहीं और चले गए माइग्रेट के तो आपने नए लोगों से मिलके आप वो दोस्ती करते हैं These are not people from your childhood or even your young adulthood या उसी जगह से नहीं है You have truly looked for and it's a blessing if you find the right kind of people तो वो हम बस इसी बात पे खुश हो के बस वो ऑक्सीटोसिन बढ़ा रहे थे हाँ हम इसीलिए मिलते हैं we come back feeling so good very so good I just wanted to share one thing and I wrote it down there was a survey तो उसकी बेस के ऊपर एक में पेंसिल गिर गई है the long running Harvard based nurses health study found that the more close friends a woman has the less likely she is to suffer physical ills as she ages in fact not having at least one true confidant can ultimately be as detrimental to your health as being a heavy smoker. Oh mon Dieu. Now I don't know इस study के पीछे कितनी authenticity है, but so take it with a grain of salt. No, but I think वो heavy smoker और ये वाली बात जितनी है नहीं है, but I truly believe the focus should be on the on focus the friendship is on part. the fact that truly when you have those good friends एक दो तीन जो भी it's a blessing. बहरहाल ये स्टडी औरतों के लिए है but it goes hand in hand मर्दों के लिए भी and having good friends is also very important for men. So it's needless to point out that. Needless to. आप भी ले आते एक स्टडी में तो ले आई भाई हम तो अपने जेंडर का बहुत ख्याल रखते हैं I think हम boys को शायद studies की जरूरत नहीं है हमें पता है So the next point we had was it's for to care for a pet. Wow, हमें बहुत शौक है पेट को केयर करने का लेकिन इजाज़त नहीं मिल पाती कि किसी पेट की केयरिंग हो सके मिशाल and I have been begging literally कि कोई किसी किस्म का पेट आ जाए घर में तो most likely हमारे पास शायद जब मिशाल थोड़ी और बड़ी हो जाए तो we can stretch it for a cat लेकिन I'm a dog guy लेकिन dog की कभी इजाजत अब cat भी मैं उससे भी नहीं बिल्कुल ही वो मैं इन लोगों को ऐसे दिलासा देती रहती हूँ नहीं आएगी cat इंशाल्लाह नहीं
बिकॉज ये भी एक बहुत ही टिपिकल देसी घराने की एक खास बात होती है कि सब प्यार मोहब्बत की बातें करके ले आएंगे पेट को ये वो और फिर नहीं, then you're लेकिन left with yeah, but the cats are very much self-sufficient, or I it's know I mean मुझे पता है इर्द गिर्द इतने it's an oxytocin booster. Maybe उसकी वजह से शायद हमारे यहाँ आ नहीं जाए। आई हैव मल्टीपल इतने बताए हैं अभी छठे पॉइंट पे आई हूँ तो वो अभी और भी pet बहुत है हैं। anyway let's move on so if you have a pet great you can cuddle you can See? do all those things कितना मजा है हम भी करें हाँ, cuddle। yeah कोई बात नहीं हमारे अच्छा पास जी, और next तरीके क्या हैं है? you can also try acupuncture Hmm. that will also help stimulate your oxytocin. It's really great for your overall health, so you can try that, of course. And then include more vitamin C, vitamin D, and magnesium-rich foods. And जहाँ supplement की ज़रूरत है, but always consult a professional, a practitioner for your supplements. But you know, food की form के अंदर you और can हमारी always एक take those. सेपरेट एपिसोड आएगी इंशाल्लाह सप्लीमेंट्स के ऊपर। अब हमें अब मैं इतना कह सकता हूँ more than one person has told us More than one. more than one person हम has बस told अच्छे us हैं हम ऐसे नहीं क्यों बात बोलेंगे जी हाँ। सैकड़ों लोगों ने बोला है more than one person जो more than one person जो सुनते हैं और देखते हैं हमारे पॉडकास्ट को उन्होंने हमें पर्सनली बोला है कि supplements के ऊपर एपिसोड होनी चाहिए and this was already in our plan and inshallah we will do that very soon. Yeah, absolutely. ठीक है जी। और बस lastly that Daniel already mentioned बीच में fix your sleep. Exactly. Unless obviously you're going through a phase where it is not possible where there's some difficult situation in your life or maybe you have a newborn etc but otherwise in general just fix it because that is very important for all of these hormones for your overall well-being. Right. And lastly, please prioritize yourself. You know, be kind to yourself. Try to find the compassion. Try to forgive yourself and try to love yourself because self-affirmation is also one thing if you are not able to do it to yourself, then don't expect anyone else to do it to you. So we're going to end the episode with this क्या कहूँगी quote ढूंढ रहे थे actually मिला नहीं but then वो तो सना ने खुद ही बना लिया quote तो नहीं बनाया but anyway we'll end it with this little thing कि भाई आप प्यार मोहब्बत जो है वो बांटें प्यार मोहब्बत के साथ रहें और ऑक्सीटोसिन के अपने लेवल्स भी बढ़ाएं और दूसरों के लेवल्स भी बढ़ाएं इर्द गिर्द and stay happy and life is going to feel much better. So like and subscribe. Thank you so much. Thank you for watching. और दुआओं में याद रखिएगा. Yeah, and we'll see you in the next episode.